Good morning, dear students. Welcome to the online classes. You all know that your exams are going to start from 17th of August. So, dear students, revise your chapters daily and properly. Now, today in this video, we are going to revise chapter 1, knowing our numbers. Okay, daily we are going to do the revision of the chapters one by one. So, today we are revising the chapter 1, knowing our numbers. Now the first topic which I am taking is place value and face value. Now what is a place value? The place value of a digit depends upon its place. किसी भी digit की place value किस पर depend करती है? उसकी place पर. Now see here, find the place value of 8 in 58623. 8 की place value हमें इस number में find out करनी है. Now see here what I told you, कि place value depends upon the place of the digit. So in which place 8 lies? Ones, tens, 100, 1000. 8 कौन सी place पे है? 1000 place पे. So the place value of 8 is 8000. Got it? Now find the place value of 3 in 836. Okay, so where is 3? In which place? Ones, tens. 3 is on tens place. So the place value of 3 is 30. Okay. Now find the place value of each digit in 95,623. इस नंबर में हमें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सी हियर, each digit, what we have to do, we have to find the place value of each digit. So see here, मैं राइट से शुरू कर रही हूँ. ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3. 3 is on which place? Ones place, इसलिए हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से. So what we will get 3. Now the place value of 2 into 10. Why? Because 2 lies on which place? Tens place. So the place value of 2 will be 20. Now the place value of 6 is equal to 6 into 100. That is the place value of 600. Why? 1 stands 100. 6 lies on which place? 100 place. So the place value of 6 is 600. Now the place value of 5 is equal to 5 into 1000. Why? Because 5 lies on which place? 1000. 1 stands 100,000 in 1000 place. So that is why we are multiplying it with 1000. So what we will get? 5000. Now the place value of 9 is 90,000. Why 90,000? Because 9 lies on which place? 10,000. That is why the place value of 9 will be 90,000. Okay, dear students, it's not compulsory कि you have to start from the right only. आप उसको left से लिखना भी शुरू कर सकते हो. Okay, now the next is the face value. अब face value क्या होता है? किसी भी digit की face value वो खुद होती है. Face value doesn't depend upon the place of the digit. Place value place पर नहीं depend करती है. Face value प्लेस पर नहीं डिपेंड करती है. फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी डिजिट की? वो खुद होती है, इटसेल्फ. नाउ सी हियर, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 4632189. डजंट मैटर 3 कौन सी प्लेस पर लाई करता है. मैंने अभी क्या बताया कि फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी डिजिट की? वो डिजिट खुद. सो व्हाट विल बी द फेस वैल्यू ऑफ 3? 3. व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल्ड डिजिट? कौन सा सर्कल है? 2. Doesn't depend on the place. Face value place पर डिपेंड करती नहीं है. तो face value क्या हो जाएगी? 2 की. Encircled digit की face value we have to find out. So 2 की face value क्या हो जाएगी? 2 खुद itself. So 2 is the face value of 2. Okay. Now see the Indian system of numeration and the international system of numeration. Now here you have given a number 1 2 3 4 9 6 7 8 5. So how to place the commas in Indian system of numeration? First of all, right से, ठीक है, इसका ऑर्डर होता है 3 2 2. राइट से हम सबसे पहले 3 डिजिट्स पर कॉमा पुट करते हैं 1 2 3. ठीक है, देन आफ्टर 3 2. पहले राइट से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट किया, फिर उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट करते हैं 1 2. और फिर अगेन उसके बाद कितने डिजिट्स के बाद कॉमा पुट करते हैं? 2 डिजिट्स के. 1 2.
Now if in the question it is asked कि ड्रॉ प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है, फॉर दिस नंबर, तो मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इस नंबर को मैंने इस प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ सी हियर 5, 8, 7, 6, 9, 4, 3, 2, 1, ओके, ये नंबर भी प्लेस हो गया। नाउ सी हियर हाउ यू विल राइट इट। नाउ सी 12 करोड़ 34 लाख 96,785. This is the way how you will write it. Okay, 12 crore 34 lakh 96,785. Now see here the international system of numeration. Now 219534698 नंबर गिवन है, ठीक है। अब कॉमास कैसे प्लेस करते हैं, राइट से 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3, देखो मैंने यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस किया है, देन आफ्टर द 3 डिजिट्स 1 2 3 देन आई हैव प्लेस्ड अ कॉमा। सो इंडियन सिस्टम में राइट से पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद और फिर 2 डिजिट्स के बाद। बट इंडोनेशियन सिस्टम में स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट से 3 डिजिट्स के बाद और फिर 3 डिजिट्स के बाद। आई हैव मेड अ प्लेस वैल्यू चार्ट हियर, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। नंबर को मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर देना। हाउ यू विल रीड इट, नाउ सी हियर 2 इज ऑन 100 मिलियन, तो 2 को क्या रीड करेंगे 200, देन 19 मिलियन, जैसे नॉर्मली रीड करते हैं 219 मिलियन, और 5 इज ऑन 100,000, सो 500, देन 34,698. This is the way you will write this number in words. Now dear students, see the next topic, rounding off. Now the first question is round off to the nearest 10. Okay, now for rounding off to the nearest 10 हमेशा याद रखो जिसको भी राउंड ऑफ करना है उस पे अंडरलाइन कर लो। तो नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करना है, सो 1 10, इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने, ठीक है ना। जिसको अंडरलाइन करते हैं उसके बाद वाला नंबर देखते हैं, ठीक है। अगर वो उसकी जो बाद वाला नंबर है वो अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो आप जो 10th प्लेस पर जो आपकी डिजिट है उसको आप क्या करोगे, नाउ डियर Now dear students, let's see the next topic, rounding off. Now see the first question, round off to the nearest 10. So we have to round off to the nearest 10, इसलिए मैंने जो 10th प्लेस पर डिजिट है उसको क्या कर दिया है, अंडरलाइन, ठीक है। Now अब 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको राउंड ऑफ करने के लिए हमने क्या करना है, हमें उसके बाद वाली डिजिट को देखना है ना। अगर उसकी बाद वाली डिजिट जो है वो 5 है या 5 से बड़ी है तो हम यहाँ पर 1 ऐड ऑन कर देंगे, और अगर 5 से छोटी है तो जो 10th प्लेस पर डिजिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा ना। सी हियर 4 इज व्हाट, लेस देन 5, सो 9 विल रिमेन 9, ठीक है। और जो डिजिट हमारी 1st प्लेस पर है हमने उसको 0 से रिप्लेस कर देना, ये मैंने आपको फर्दर पहले भी बताया है, ठीक है। So 7 will remain as it is, ठीक है। 9 will also remain as it is because this is 4 less than 5. Now we will replace 4 by 0, और 4 को किससे replace कर देंगे, 0 को। So the required answer is 790. Now see here 7,861. So again underline this. Now see here, observe this is 1, so less than 5, so 6 will remain as it is and we will replace 1 by 0, ठीक है। 7,860. Okay, now see another example also I am giving you. 749, ठीक है, 749, or you can take 849. 849. Now see here, you have to round up to the nearest 10. So I have underlined the digit which is at the 10th place, that is 4. 4 को अंडरलाइन कर लिया मैंने, ठीक है। अब बाद वाला नंबर डिजिट देखेंगे which is 9, ग्रेटर देन 5 है, इस वजह से हम 4 में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 8, 5 और 9 को 0 से रिप्लेस कर देंगे, 0। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर, 850. नाउ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. सो 100 वाले प्लेस पे जो डिजिट है उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। नाउ सी हियर
ठीक है, अब हम इसके बाद वाली डिजिट को देखेंगे विच इज 6 ग्रेटर देन 5, सो वी विल ऐड 1, ठीक है, 5 में 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा 6, और 5 के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी उनको 0 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये क्या बन गया 600। नाउ 7865 अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है ना, सी हियर 7 को एज इट इज लिखेंगे ना, 8 के बाद क्या है 6 ग्रेटर देन 5, सो इस वजह से हम 8 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9, और बार वाली डिजिट्स को सबको 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नाउ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, सो सी हियर 1000 वाली प्लेस पे जो डिजिट है मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। नाउ सी हियर 5 के बाद क्या है 7 ग्रेटर देन 5, सो 5 में 1 ऐड कर देंगे 6, और इसके बाद वाली सभी डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, सो दिस इज 6000। नाउ सी हियर अगेन 1000 वाली प्लेस को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, 1000 वाली प्लेस पे जो डिजिट है। नाउ सी हियर 9 के बाद क्या है 5, अगेन 5 होना चाहिए या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 ऐड करेंगे। अब 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, दैट मीन्स 8 कैरी 7 को भी जाएगा, तो दैट इज व्हाई इट विल बी 8, ठीक है, 0, और बाकी सारी डिजिट्स को भी 0 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, सो ये हो जाएगा 80,000। ओके, अगेन सी 9 है, यहाँ पे 5 था तो 9 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 10, तो 1 0 ये हो गया, ठीक है, और 7 में भी 1 कैरी गया तो ये हो गया 8, और बाकी सारी डिजिट्स को हमने क्या किया 0 से रिप्लेस कर दिया, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 80,000। नाउ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000, सो सी हियर मैंने अंडरलाइन किया है जो उस डिजिट को जो 10,000 प्लेस पर है, ठीक है ना। इसके बाद वाले डिजिट देखेंगे, 5 को देखेंगे, 5 है तो हम 2 में 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3, और बाकी सारी डिजिट्स को बाकी सारी डिजिट्स को 0 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, दिस विल बी 30,000। Now next see, form the greatest and smallest number using the following digits. Now see the A part is 4, 3, 0, 1, 2, 3. Now earlier also I have told you that for forming the greatest number you have to arrange the digits in descending order, and for forming the smallest number you have to arrange the digits in ascending order, ठीक है। Now see the next, form the greatest and smallest number using the following digits. Now see the A part 4, 3, 0, 1, 2, 3. Now ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हमें डिजिट्स को किस ऑर्डर में अरेंज करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हमें डिजिट्स को किस ऑर्डर में अरेंज करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपको ये लर्न करना होगा कि डिसेंडिंग ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में और स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर में हम डिजिट्स को अरेंज करते हैं नंबर को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर यही नहीं पता होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चन, ओके। नाउ ग्रेटेस्ट नंबर, नाउ देयर इज अ केस ऑफ जीरो ऑल्सो, बताया था कि जीरो को कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं रखते हैं, कहाँ रखते हैं, जीरो को सेकेंड प्लेस पर रखते हैं फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से जीरो प्लेस पर सेकेंड प्लेस पर रखते हैं जीरो को। ना सी है, अब इस केस में एक जीरो दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट के लिए हमें पहले क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है डिजिट्स को। तो सबसे बड़ा कौन सा है 4, ठीक है, देन आफ्टर 4 विच वन, ठीक है 3। नाउ यू कैन सी 2 3 है तो दोनों ही 3 को साथ में रखेंगे, देन 2 देन 1 देन 0। अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब जीरो का केस आता है तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर में ध्यान रखना पड़ता है। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते वक्त, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होता है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है डिजिट्स को, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते वक्त तो जीरो तो सबसे छोटा होता है, दैट मीन्स जीरो को कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट प्लेस पर, बट जीरो को हम फर्स्ट प्लेस पर नहीं रखेंगे। ये केस आपको स्मॉलेस्ट नंबर में याद रखना है, जीरो को कहाँ रखना है, सेकेंड प्लेस पर फ्रॉम द लेफ्ट, ओके। ना सी हियर, तो दैट मीन्स जीरो के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं ना, तो जीरो के बाद 1 है, तो 1 को हम फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे और जीरो को हम सेकेंड प्लेस पर रखेंगे। अब हम अरेंज करते जाएंगे। अब आपने 1 तो यूज कर लिया, अब आप 1 नहीं यूज करोगे, ठीक है, 1 और 0। नाउ 1 के बाद कौन सा बड़ा है 2,
Then again 2 3 are there, तो दोनों 3 को साथ में राइट करेंगे. Then 4. Okay, understood all of you? Now see the B part 6 0 2 3 4 1. Now greatest number के लिए सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है. सबसे बड़ा 6, ठीक है, देन उससे छोटा 4, देन उससे छोटा 3, देन 2, देन 1 एंड देन 0. ठीक है, ये तो हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर. ना स्मॉलेस्ट नंबर अगेन 0 को नहीं लिख सकते फर्स्ट प्लेस पे, तो 0 के बाद कौन सा बड़ा है 1, तो 1 को लिखेंगे फर्स्ट प्लेस पे, 0 को सेकंड प्लेस पर. ठीक है, एंड देन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते जाएंगे. ना 1 के बाद कौन सा हो गया आपका 2, देन 3, देन 4 एंड देन 6. दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स. नाउ सी कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स. नाउ कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स में मैंने आपको 2 केसेस बताए थे. एक फर्स्ट वन वाज कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो, एंड द सेकंड वाज जब नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हो. ठीक है, नाउ सी हियर 1 2 3 4 5. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 5. एंड 1 2 3 4. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 4. जब डिजिट्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं इस नंबर में और यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं इस नंबर में, तो वो नंबर जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा. सो दिस वन विल बी ग्रेटर. ठीक है, नाउ द सेकंड वाज जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो. ना सी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों ही नंबर में सेम है, तब हम क्या करते हैं 1 बाय 1 हम डिजिट्स को ऑब्जर्व करते हैं. नाउ सी हियर 4, हियर इज आल्सो 4. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट डिजिट. 5 5, then 8 8, 9 9, then move on to next digit 4, and this is 5. So which one is greater 5. So that is why this number will be greater. Understood all of you?